بسم اللہ الرحمن الرحیم. How to teach English language. انگریزی زبان کیسے سکھائی جائے. بہت سارے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں انگلش سکھاؤ, ایڈمیشن فیس بھی بھرتے ہیں, اس کے ساتھ وہ ماہانہ بھی دیتے ہیں, لیکن پھر وہ بور ہو جاتے ہیں, ان کا دل نہیں کرتا سیکھنے کو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جس فیلڈ کی انگلش سیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کو وہ چیز نہیں دی جاتی. تو آئیے آج ہم سیکھتے ہیں کہ کون سی فیلڈ والوں کو ہمیں کیسے انگلش سکھانی چاہیے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی آتا ہے سب کو ہم گرامیٹیکل ہم ان کو انگلش سکھاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بور ہو جاتے ہیں. تو جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں روزمرہ کی انگلش سیکھنے کے لیے, تو ظاہری بات ہے اگر آپ ان لوگوں کو آپ سکھائیں گے پارٹس آف اسپیچ, ان کو تفصیل کے ساتھ پڑھائیں گے, آپ ان کو کنڈیشنل ٹینسز پڑھائیں گے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ پڑھائیں گے, تو وہ بور ہو جائیں گے, وہ کبھی بھی نہیں سیکھ پائیں گے. تو ان لوگوں کے لیے روزمرہ کے الفاظ, روزمرہ کی جو ضروریات کے جو چیزیں ہیں ان کی انگلش کیا ہے وہ ان کو سکھانی چاہیے. باقی ان کے علاوہ کوئی لوگ ہیں جو مستقل کتابوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے, جو لوگ اس تعلیمی فیلڈ میں, ایجوکیشن فیلڈ میں جو آگے جانا چاہتے ہیں, پی ایچ ڈی تک جن کا جانے کا ارادہ ہے, جو امتحان دینا چاہتے ہیں, ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ ان کو گرامیٹیکل طور پر پوری انگلش سکھائیں. تو انگلش سکھانے کے اندر یہ 20 اسٹیپ میں نے لکھے ہیں. آپ انگلش پڑھاتے ہیں تو ان ترتیب کے ساتھ آپ اکثر جہاں پر بھی دیکھو وہ ٹینسز 12 ٹینسز یہاں سے انگلش پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, لیکن اس کو میں نے رکھا ہے ٹینسز کو 11ویں نمبر پر. اس سے پہلے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پڑھائی جائیں, جس کی وجہ سے یہ ٹینسز سمجھنا آگے آسان ہو جاتے ہیں. تو وہ چیزیں کیا ہیں, سب سے پہلے 0 پوائنٹ میں نے لکھا ہے انفارمیشن اباؤٹ, کہ آپ جس سے پوچھنا, جو آپ کے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں کہ ہم نے انگلش سیکھنی ہے, تو ان سے پوچھیں واٹ از انگلش. انگلش یہ سیکھنے کے لیے آئے ہو, یہ انگلش ہے کیا چیز. انگلش از اے لینگویج. انگلش ایک قسم کی زبان ہے, جس طرح عربی, اردو, سندھی, پنجابی یہ زبانیں ہیں, اس طرح لینگویج ہے. واٹ از لینگویج, یہ لینگویج ہے. تو لینگویج کسے کہتے ہیں, لینگویج از دا وے آف کمیونیکیشن. لینگویج جو ہے آپس میں بات چیت کرنے کا, آپس میں جڑنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. اور پھر زبانیں تو بہت ساری ہیں, عربی بھی ہے, اردو بھی ہے, سندھی بھی ہے, انگلش بھی ہے. وائی ڈو یو وانٹ ٹو لرن دس لینگویج, دس انگلش لینگویج, آپ نے اس کا انتخاب کیوں کیا. I want to learn this language to be a doctor. I want to learn this language preaching the Islam out of countries, in English countries. میں یہ انگلش زبان اس لیے سیکھ رہا ہوں تاکہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, مجھے انگلش کی ضرورت پڑتی ہے. میں ایجوکیشن فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں, یا میں جانا چاہتا ہوں آؤٹ آف کنٹری میں پریچنگ کرنا چاہتا ہوں. تو اس اعتبار سے آپ کو جس لیول کا آپ کو یا اس سوال کے بعد بندہ آ گیا, آپ اس کو وہی گرامر آپ اس کو پڑھائیں گے, وہی چیزیں آپ ان کو پڑھائیں گے. ضرور نہیں ہے کہ ہر ایک کو آپ ترتیب کے ساتھ صرف گرامر ہی پڑھائیں, یہ کوئی ضرورت نہیں ہوتا. آگے ہے کہ آپ نے اگر کسی کو جو ایجوکیشن فیلڈ میں ہی جانا چاہتے ہیں اور آگے ان کو بڑھنا ہے, تو ان کو آپ گرامر کیسے پڑھائیں گے. تو اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ ہاؤ ٹو لرن دس لینگویج. ابھی ہم نے اس لینگویج کو سیکھنا کیسے ہے, ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی. وی نیڈ ٹو ڈو انگلش گرامر ٹو لرن دس لینگویج. ہمیں اس لینگویج انگلش کو سیکھنے کے لیے ہمیں گرامر کی ضرورت پڑے گی. واٹ از گرامر. اب گرامر کیا چیز ہے. گرامر از دا آرٹ آف پوٹنگ دا رائٹ ورڈز آن رائٹ پلیسز. صحیح الفاظ کو صحیح جگہ پر رکھنے کا نام گرامر ہے. تو آئیے ہم گرامر کو سیکھتے ہیں. گرامر کی ابتدا ہم کہاں سے کریں گے. تو گرامر کی ابتدا ہم کریں گے, کسی کو بھی پڑھیں گے. تو یہ الفاظ ہیں, میں نے لکھے صرف 20. تو باقی جہاں پر بھی آپ گرامر پڑھائیں گے تو صرف یہی چیزیں ہیں. باقی جو چیزیں ہیں وہ ان کے ساتھ ضمنی طور پر پڑھائی جاتی ہیں, ریلیٹیو ہوتی ہیں, وہ ان کے ساتھ پڑھائی جاتی ہیں. جیسے لیٹر ہے, آپ لیٹر پڑھائیں گے, آپ اس میں 2 دن لگائیں, 5 دن لگائیں اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے.
तो उसके अंदर आपने इसके कैपिटल लेटर्स भी पढ़ाएंगे, स्मॉल लेटर्स भी पढ़ाएंगे, वॉवेल्स भी पढ़ाएंगे, कॉन्सोनेंट भी पढ़ाएंगे और इस तरह सेमी वॉवेल्स भी पढ़ाएंगे। और उसके बाद आते हैं आपने पूरा करने के बाद वर्ड के अंदर आप आ गए। वर्ड के अंदर आप पढ़ाएंगे वोकेबलरी, मुख्तलिफ एतबार से चीज़ों के नाम, रंगों के नाम, अज़ा के नाम, जगहों के नाम, सब्जियों के नाम, फलों के नाम। और इसको आप जितनी वोकेबलरी बेहतर बनाएंगे तो लोगों को फ़ायदा होगा। इसी तरह फिर नाउन में इसम चीज़ों और फेल के वर्ब के अंदर आपने इनके तकरीबन 30, 40, 50 जितने आप उनको याद करवाएं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, इससे पहले बेस फॉर्म, तो ये आपने वोकेबलरी इसके अंदर साइनोनिम्स, हार्मोनियम्स, एंटोनिम्स वगैरह जितनी आप इनके अंदर गहराई में जाएंगे तो आपकी इंग्लिश आगे इतनी मजबूत होगी जितना टाइम आप इनको वर्ड के अंदर लगाएंगे। इसके अंदर सिंगुलर, प्लूरल, स्पेलिंग रूल वगैरह और मज़ीद इसको बेहतर बनाएंगे। और उसके बाद आप इसके अंदर आपने लफ्ज़ जब पढ़ लिए तो अब लफ्ज़ों की आपने किस्में उनको अंदर बयान करेंगे कि ये लफ्ज़ जो है माना के एतबार से, ये तरकीब के एतबार से, ये लफ्ज़ ये इसम है, ये फ़ेल है, ये हरफ है और ये जो है सिफत है वगैरह, ये आप उनको बताएंगे। तो इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर कोई तालिब इल्म समझने वाले हैं, कवर करने वाले हैं तो उनको आप काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ाएंगे, वरना सिर्फ आप उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 और उसके साथ जो है चंद अल्फाज आप उनको पढ़ाएंगे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये आप उनको पढ़ाएंगे और उनकी छोटी छोटी तारीफात मिसालों के साथ, लेकिन काइंड्स में नहीं जाएंगे। उसके बाद जब आपने अगला स्टेप है फ्रेज आप उनको पढ़ाएंगे। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है कि एक नाकिस जुमला, अधूरा जुमला, जैसे हम कहते हैं ज़ैद का गुलाम, ऑफ लगा देते हैं, या इन द रूम जर मजरूर लगा देते हैं। तो ये जो होते हैं इनकी ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ाना 5 अल्फाज देकर मशक करवाई जाए, जिसकी वजह से तलबा के अंदर इस्तेदाद पैदा हो जाएगी, आगे जुमले बनाना उनके लिए आसान हो जाएंगे। जब आपने फ्रेज पढ़ा लिए तो ये तकरीबन 30 पढ़ाएँ, 40, 50, 60, 70 जितने आप पढ़ा सकते हैं तलबा की इस्तेदाद के एतबार से आप पढ़ेंगे। आगे इम्पेरेटिव के अंदर यानी कि अमर, जुमला बनाने में सबसे ज़्यादा आसान जो जुमला है वो इससे अमर से बढ़कर और कोई भी नहीं है। यहाँ से शुरू करते हैं लोग, जहाँ जब भी इंग्लिश पढ़ाते हैं तो वो टेंसेस, 12 टेंसेस, लेकिन उससे पहले ये चीज़ें रह जाती हैं। सबसे ज़्यादा आम ये चीज़ है कि जुमला बनाओ, आसान जुमला, खाना खाओ, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईट। तो ईट क्या है? उनको तरीका बताना है कि बस कोई भी जुमला मसदर है, आपने उनको बेस फॉर्म उठा के अमर की जगह पे रख दो, वो अमर बन जाएगा। और अमर से पहले आपने डोंट लगा दिया तो ये नहीं बन जाएगा, जैसे ईट खाओ, डोंट ईट मत खाओ। तो उसके बाद आगे आपने इस अमर नहीं पढ़ाने के बाद आगे आप पढ़ाएंगे बी वर्ब, हैव वर्ब, मॉडल वर्ब्स। बी वर्ब के अंदर 3 टेंसेस होते हैं। एक बहुत आसान जुमला होता है, जैसे इसके अंदर 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टू बी टेंस, पास्ट टू बी टेंस, फ्यूचर टू बी टेंस। आई एम डॉक्टर, आई वाज डॉक्टर, आई विल बी डॉक्टर। मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर था, मैं डॉक्टर हूँगा। और कोई भी जुमला ये पढ़ाएंगे इसके चारों अक़साम, मुस्बत, मनफी, सवाली मनफी। और इसी तरह है वर्ब के अंदर भी आपके मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन था, मेरे पास एक पेन होगा। जैसे आई हैव अ पेन, आई हैड अ पेन, आई विल हैव अ पेन। ये 3 टेंसेस इसके अंदर पढ़ाए जाते हैं। और इस तरह उसके बाद आगे होते हैं मॉडल वर्ब्स। इसको मॉडल वर्ब भी कहते हैं, मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। तो ये आप पढ़ाएंगे। मॉडल वर्ब्स के अंदर अपनी ज़रूरियात, अपनी ख्वाहिशात और अपने इम्कानात, अपनी सलाहियत और अपनी ताकत और इस तरह अपनी जो मशवरा, सजेशन वगैरह इसमें बयान किया जाता है। तो मॉडल वर्ब्स कितने? कैन, कुड, विल, वुड, शल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट, टू। उसके बाद आप आगे आ जाएंगे सेमी मॉडल्स के अंदर। सेमी मॉडल के अंदर आप पढ़ाएंगे कि ये एक किस्म के मॉडल वर्ब्स के एक छोटे भाई हैं सेमी मॉडल्स, जैसे हैव टू, हैज़ टू, विल हैव टू, हैड टू। तो ये आप पढ़ाएंगे। और ये पढ़ाने के लिए आपने सिर्फ इनका ताल्लुक भी मानक के एतबार से मॉडल वर्ब के साथ होता है, बहुत हल्का फ़र्क होता है जो आप उनको समझाएंगे तरतीब के साथ। उसके बाद आप पढ़ाएंगे टेंसेस। अब यहाँ पर जब आप टेंसेस पढ़ेंगे तो उनको आसानी से समझ में आ जाएगी। आप थोड़ी सी तो बच्चों को हिट देंगे और वो आगे खुद ब खुद सैकड़ों जुमले बना लेंगे।
तो 12 टेंसेस पढ़ाने के बाद आगे पढ़ाएंगे आप उनके साथ के WH क्वेश्चन वर्ड्स। आम तौर पर हम 70% ज़िंदगी के अंदर हम बात सुनते हैं किसी की, तो उसके अंदर हमें ये बात समझ में आती है कि ये अगला बंदा जो ये कुछ बोल रहा है तो इससे हमें कुछ समझ में आ रहा है कि ये कुछ हमसे पूछना चाहता है किसी चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी बंदे के बारे में। तो ये कुल अल्फाज WH क्वेश्चन वर्ड्स 10 होते हैं। वाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, विच, होम, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। तो ये 10 अल्फाज होते हैं। इनके दो दो मानी होते हैं। एक मानी ये होता है कि हाउ, वाट, वाई, व्हेन, वेयर, इनके बाद अगर आ जाता है सब्जेक्ट डायरेक्ट तो ये खबर का माना देते हैं, और अगर इनके बाद आ जाता है हेल्पिंग वर्ब तो ये सवालिया माना देते हैं। तो ये जब अभी तो वो मौजू नहीं है कि हम तफसील के साथ अब उनको सीखेंगे, तो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो आगे पेस वाइज WH क्वेश्चन वर्ड के बाद पेस वाइज, तो WH क्वेश्चन के बाद यहाँ तक आप बेसिक लेवल समझी जाती है। आगे 4 स्टेप है जिनको एडवांस इंग्लिश कहा जाता है। तो पेस वाइज के अंदर इतना मुश्किल एक एक करके पढ़ाया जाता है, बहुत आसान। सिर्फ 5 कायदे इसके जो है ना सिर्फ ज़हन के अंदर रख लिए जाएँ तो ये आसानी से आप हल कर सकते हैं, सिर्फ मश्क की जाए। सबसे पहले कि पेस वाइज के अंदर जो आपको एक्ट वाइज जो मारूफ जुमला मिला है उसके अंदर ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे रखें। दूसरे नंबर पर जो आप जो एक्ट मारूफ जुमले के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वही आपने जू का तू मजूल के अंदर लेकर आना है पेस वाइज के अंदर। तीसरे नंबर पे आपने देखना है कि मारूफ जुमले के अंदर जो मेन वर्ब है वो किस फॉर्म में, तो उस फॉर्म के एतबार से आपने बी वर्ब लेकर आना है। चौथे नंबर पे जो मारूफ जुमले के अंदर जो मेन वर्ब है उसको आपने मजहूल जुमले में प्लस थर्ड फॉर्म में लेकर आना है। पांचवें नंबर पे आपने बाय सब्जेक्ट लेकर आना है। ये 5 चीज़ें इस्तेमाल करोगे आपका पेस वाइज हल हो जाएगा। आगे कंडीशनल टेंसेस और सेंटेंसेस होते हैं, शर्तिया जुमले 4, 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये 4 कंडीशनल टेंसेस होते हैं। तो ये पढ़ाए जाए। और पॉजिटिव्स जो है, पॉजिटिव्स के अंदर ये होता है आई मेक द अर्ली राइट लेसन। हर जगह पर मेक लगा देते हैं, हर जगह पर मेक। ये मेक होता है लगाना, किसी से काम करवाना। ये होता है किसी से ज़बरदस्ती मजबूरी के तौर पर काम करवाना। ये हर जगह पे मुनासिब नहीं है, बल्कि इसके पॉजिटिव्स के 5 अल्फाज होते हैं, मेक, हैव, गेट, लेट, हेल्प। ये 5 अल्फाज होते हैं जिनके अलग अलग मानी होते हैं। आप किसी से मजबूरी के तौर पर ज़बरदस्ती किसी से काम करवा रहे हो, आप मेक इस्तेमाल करोगे। आप हैव, किसी को आप दोस्ताना अंदाज में काम करवा रहे हो, हैव इस्तेमाल करोगे। आप किसी से उजरत के तौर पर काम करवा रहे हो, कार धुलवा रहे हो, कपड़े धुलवा रहे हो धोबी से, आप गेट इस्तेमाल करोगे। आप किसी से इजाज़त देकर काम करवा रहे हो कि अगले बंदे चाहते भी आपका काम करें लेकिन आपकी इजाज़त पर मौकूफ़ है, आप उनको इजाज़त देते हो तो वो आपके कपड़े धो देते हैं, लेट इस्तेमाल करोगे। हेल्प इस्तेमाल, ये भी एक पॉजिटिव में शामिल है कि आप किसी बंदों से काम करवाते हो लेकिन साथ आप उनके मुआविन भी बन जाते हो, उनकी मदद भी करते हो, तो ये हेल्प हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव है। आगे नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर जो है ना आसान तरीका होता है कि आपने सिर्फ तब्दीलियाँ लानी है, ज़मीरों के अंदर तब्दीलियाँ लानी है, टेंस के अंदर तब्दीली लानी है कि जो प्रेजेंट है उसको पास्ट में लेके जाना है, पास्ट को फिर और जो पार्टिसिपल में लेके जाना होता है। ये इसके अंदर 3-4 तब्दीलियाँ होती हैं। उसके बाद आगे मैंने लिखा है 17वां पॉइंट्स स्ट्रक्चर। पॉइंट स्ट्रक्चर्स के अंदर के जैसे एज का स्ट्रक्चर है, इसी तरह हैविंग का स्ट्रक्चर है, और इसी तरह सैकड़ों स्ट्रक्चर्स हैं जो ग्रामर से टेंसेस से हटकर जो पढ़ाए जाते हैं, जैसे लेट्स गो वगैरह। तो ये पॉइंट्स होते हैं। ये आदमी 100-150 जितने पढ़ाएंगे तो इनके साथ थोड़ा आपको फायदा होगा। आगे 18वां स्टेप में लिखा है इडियम्स। इडियम्स जो है ना बच्चों को कुछ न कुछ याद करवाया जाए ताकि उनकी मुनासबत रहे। जैसे इडियम्स के अंदर एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, मनी डजंट ग्रो ऑन द ट्रीज, पैसे जो है दरख्तों पर नहीं उगते। तो इस तरह के ये इडियम्स उनको याद करवाया जाए। आगे सैम्पल पैराग्राफ और ऐसे। सैम्पल पैराग्राफ के अंदर आपने जब आपके जुमले बन गए तो जुमलों से पहले आपने हरफ सीखे, हुरूफ से लफ्ज़ बने, लफ्ज़ से जुमले, जुमले से आगे फिर अक़साम जुमलों की, जुमलों के बाद फिर आप आ गए आप पैराग्राफ पर। पैराग्राफ के अंदर आप पढ़ेंगे कि सैम्पल पैराग्राफ किस तरह बनता है कि मजमून का एक पहलू लेकर उसके अंदर एक इंट्रोडक्शन
اور ایک باڈی ہوتی ہے, آگے کنکلوژن ہوتا ہے. تو انٹروڈکشن کے اندر بھی ایک جملہ ہوتا ہے, باڈی کے اندر جو سم پوائنٹس ہوتی ہیں جن پر 2-3 سطریں لکھی جاتی ہیں, اور آخر میں پھر کنکلوژن ہوتا ہے جس میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے کنکلوژن میں کہ اس کا ہمیں حاصل کیا ہے, اس کا خلاصہ کیا ہے. تو اسی طرح پھر آگے آخری اسٹیپ پہ ایسے کہ مضمون کہ آپ نے مضمون, تو اسی کو ہی تھوڑا سا پیراگراف کو لمبا کیا جاتا ہے اور اس کے اندر کچھ چیزیں اضافہ کیا جاتا ہے, اس میں مختلف پہلوؤں پر بات کی جاتی ہے موضوع پہ, تو یہ ایسے بن جاتا ہے. تو یہ جو ہے 20 چیزیں میں نے آپ کے سامنے لکھی کہ انگلش گرامر کے اندر یہ 20 چیزیں ہیں. لیکن انگلش گرامر کا حاصل وہی ہے کہ آپ یہ ہر کسی کو نہیں پڑھائی جائے, لیکن جو انگلش جو ایجوکیشن فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں وغیرہ, تو ان کے لیے یہ مناسب ہے. اور باقی لوگوں کے لیے یہ کہ ان کو روزمرہ کے گروپ بہت سارے ملتے ہیں, تو ان کو ضرورت کی چیزیں روزمرہ کے الفاظ ان کو سکھائے جائیں. باقی اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو آپ کہو گے کہ ان کے اندر ذکر نہیں ہوئی, تو وہ ان کے ساتھ ریلیٹیوز ہی ہوتی ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے, باہر سے جو ہے کچھ بھی چیز نہیں ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہوگی. تھینک یو سو مچ, سی یو, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.